Good morning, all of you. Today we will start chapter 2 of geography, that is forest and wildlife resources. The chapter is very simple, as you all know about forest, about flora and fauna, about wildlife. So all these the chapter is about all these things, forest and wildlife resources. Okay, so now we will start. Narak, my lord, you are the creator of music in the world of lepchas. O Narak, my lord, let me dedicate myself to you. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountains, the forests, the insects, and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. Source lepcha folk song from northern part of West Bengal. ठीक है, तो it is about म्यूज़िकल लाइक अ फोक सॉन्ग. उसमें यही बताया है कि द थिंग इज़ अबाउट कि किस तरह से जो म्यूज़िक है वो आदमी हर जगह से गैदर कर सकता है, चाहे वो स्प्रिंग्स हों, चाहे वो रिवर्स हों, चाहे वो माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट हो, इंसेक्ट्स की आवाज़ें हों, एनिमल्स की आवाज़ें हों. तो इस तरह से अलग अलग क्रिएटर है, अलग अलग म्यूज़िक का साउंड क्रिएट होता है इन सब चीज़ों से. तो यही सब चीज़ें हैं कि किस तरह से इन सब से हम म्यूज़िक को कैप्चर करते हैं, हम अलग अलग साउंड, अलग अलग वॉइसेस के बारे में हम जानते हैं. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे म्यूज़िक को और किस तरह से म्यूज़िक हम फॉरेस्ट से, इंसेक्ट से, एनिमल से हम गैदर करते हैं. और अगर कल यही प्रॉब्लम, अगर वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो गया, अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, तो बताइए ये सारा म्यूज़िक कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हम अपने आप को रिफ़्रेश कर पाएंगे. तो ये इसके बारे में है. सो दिस इज़ क्यों इस फोक सॉन्ग को यहाँ पर ऐड करने का रीज़न ही ये था कि किस तरह से फॉरेस्ट से, किस तरह से वाइल्ड लाइफ से हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं. ठीक है. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganism and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. के मतलब हर टाइप का क्रीचर हमारे planet पर है. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. और इस तरह से ये सब चीज़ें मिलकर biodiversity को बनाती है. We humans along with all living organism form a complex web of ecological system. Web का मतलब होता है एक जाल. In which we are only a part and very much dependent on this system of our own existence. कि आज हमें भी इन सब के साथ जीना मतलब ज़रूरी है. हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इनके अलावा हमारी भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. तो मतलब ये है कि we all are dependent on each other. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living being depend. के हर चीज़, हर क्रिएचर किस पर डिपेंड करता है? फॉरेस्ट पर. तो फॉरेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. Biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. कि हर क्रिएचर जो है, हर स्पीशीज़ जो है, वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. Flora and fauna in India. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. इंडिया में मतलब इंडिया रिच है इन सारे सोर्स में, बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया के पास. हर टाइप का फ्लोरा, फोना, हर बहुत कुछ है इंडिया की. इंडिया रिच है इन सब चीज़ों में. And has nearly 8% of the total number of species in the world, estimated to be 1.6 million. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. कि मतलब ये कि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसके बारे में आज भी हमें नॉलेज नहीं है. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have
realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted कि हम यूं ही मतलब यूं ही है कि well integrated इनके हम क्या कर लेते हैं, कई बार taken for granted कर लेते हैं कि ठीक है जो है वो है, हम उतना इन चीज़ों का केयर नहीं करते. But lately they are under great stress, many due to insensitivity to our environment. लेकिन हमें इन सब का ख्याल रखना होगा, हमें इन सब पर ध्यान देना होगा. Over 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country so far. Of the estimated 47,000 plants species and about 15,000 flowering species are endemic or indigenous to India. फिर ये फाइंड आउट है. Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. बस अब यही प्रॉब्लम आ रहा है कि अब धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ है वो इंडिया की धीरे धीरे कहाँ चली जा रही है, थ्रेटनिंग सिचुएशन पर आ रही है. धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, बहुत एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है. Many of these would now be categorized as critical, that is, on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, and plants like Maduka insignis, a wild variety of mahua and habadia. ठीक है, ये सारे जो स्पीशीज़ ऑफ ग्रास है, हेप्टेनोरॉन. इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीशीज़ मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट. और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कितनी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं. टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट what about smaller animals like insects and plants? बट इसका मतलब यही हुआ कि आज हम उन सब के बारे में जानते हैं जो हमें दिखता है कि हाँ ये एक्सटेंट होता जा रहा है, ये एंडेंजर्ड है. बट जो छोटे छोटे हैं, जो स्मॉलर एनिमल्स हैं, प्लांट्स, उनके बारे में तो हमें नॉलेज ही नहीं है. तो उनका क्या होगा? डू यू नो that among the larger animals in India, 79 species of mammals, 44 of birds, 15 of reptiles and 3 of amphibians are threatened. Nearly 1,500 plant species are considered endangered. Flowering plants and vertebrate animals have recently become extinct at the rate estimated to be 50 to 100 times the average expected natural rate. के सोच लीजिए, मतलब इतना endangered और extinct होते जा रहे हैं. वैनिशिंग फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहा है. डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है. द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग. द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 78.92 million hectare, which is 24.01% of the total geographical area. Dense forest 12.24%, open forest 8.99%, and mangrove 0.14%. According to the State of Forest report, the dense forest cover has increased by 10,098 square kilometers since 1997. However, this apparent increase in the forest cover is due to plantation by different agencies. ठीक है, तो बस ये सारा है कि किस तरह से धीरे धीरे ये देखो किस तरह से धीरे धीरे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं. ठीक है, let us now understand the different categories of existing plants and animal species based on the International Union of Conservation of Nature and Natural Resource IUCN. We can classify as follows. Now, normal species whose population level are considered to be normal for their survival, मतलब जो अभी भी हैं, like such as cattle, sal, pine, rodents, etc. Endangered species जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है. These are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continues to operate. अगर
जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं अगर वो ज़्यादा होते चले गए तो ये धीरे धीरे स्पीशीज़ भी ख़त्म होती चली जाएगी. द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज़ आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकेव, देन संगाई एक्सेट्रा. देन vulnerable species. These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category. के धीरे धीरे कम होती जा रही है और कई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि इतनी कम हो जाएगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंडेंजर्ड में, अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे. द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन्स एक्सेट्रा. रेयर स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, जो बहुत कम होती है, मूव इन टू द एंडेंजर्ड और वुलरेबल कैटेगरी. इफ द नेगेटिव फैक्टर्स, वही अगर नेगेटिव फैक्टर्स हुए तो धीरे धीरे वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंडेंजर्ड में. द एग्जाम्पल्स आर हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा. Endemic species. These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural and geographical barriers. Example of such species, ठीक है, only find in particular areas, मतलब endemic वो होती है जो हर जगह नहीं होती, isolate होती है, कुछ ही जगह पर होती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो नेचर और वो वहीं पर पाया जाता है, बाकी हर जगह पर उनके लिए फेवरेबल सिचुएशंस नहीं होती. लाइक अंडमान टील, निकोबार पिजन, तो मतलब ये उन्हीं एरियाज में होते, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे, ठीक है. एक्सटिंक्ट स्पीशीज, अब धीरे धीरे क्या हो गई है, ये खत्म हो गई हैं. दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर, कि जहाँ पर ये पाई जाती थी आज उन एरियाज में भी ढूंढने पर ये नहीं मिलती. A species may be extinct from a local area, region, country, continent on the entire earth. अब देखने ही नहीं मिलती. Like एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये सारा, कि मतलब अब तो इन सबको ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी सिचुएशन है. एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, कहाँ गए? The world's fastest land mammal, the cheetah, is a unique and specialized member of the cat family and can move at the speed of 112 km per hour. The cheetah is often mistaken for a leopard. मतलब हम दोनों को क्या मान लेते हैं, एक जैसा. Its distinguished marks are the long teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. ठीक है, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. प्रायर टू द सेंचुरी 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Asia and Africa. Today, the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. कि बस अब उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट ही नहीं मिला उनको, उनके शिकार खत्म हो गए, प्रे खत्म हो गया, तो धीरे धीरे वो भी क्या होता चला गया, एक्सटिंक्ट एशियन चीता. The species was declared extinct in India long back in 1952 में ही इंडिया ने इसको extinct डिक्लेयर कर दिया था. What were the negative factors? अब इनके डेप्लीशन होने का नेगेटिव फैक्टर्स क्या है फ्लोरा और फोना के? If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. मतलब वही बात हुई कि किस तरह से, क्यों नेगेटिव फैक्टर्स है, वो कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, वुड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा. कि नेचर इनटू हम क्या कर रहे हैं, नेचर को इन रिसोर्स में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं. तो बस वही प्रॉब्लम हो रहा है कि आदमी जब कमाने, जब अर्निंग करने पर आ जाता है तो वो ये नहीं देखता कि हम किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम किसका नुकसान कर रहे हैं, किसका लॉस कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है. सो इट इज we ourselves who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period. सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ था, कॉलोनियल पीरियड के टाइम, जब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे फॉरेस्ट को काफ़ी बर्बाद किया. किसके लिए, रेलवेज़ को, कमर्शलाइजेशन, माइनिंग के स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो उस वजह से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था. ठीक है, ये यहाँ तक.
Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major cause of depletion of forest resource. और धीरे धीरे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ था, हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो उन सब की ड्यूरेशन में धीरे धीरे जो फॉरेस्ट था वो खत्म होता चला गया, जंगल को काटते चले गए, और उस केस में धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट है वो सारे डेप्लीशन उनका होने लग गया. Between 1951 and 1990, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. तो धीरे धीरे वही हुआ, फॉरेस्ट खत्म होते चले गए और हम उसको किस में कन्वर्ट करते चले गए, एग्रीकल्चरल लैंड में. Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation. Zoom farming हमने पढ़ा है, क्या होता है, burn and shift. तो वही होता है. तो धीरे धीरे क्या होता है, एक जगह जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उस एरिया को खत्म कर दिया जाता है, थोड़ा बर्न कर दिया जाता है, और फिर आदमी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होकर फार्मिंग करता है. सो दैट इज जूमिंग फार्मिंग. ओके, तो ये सब होता चला गया, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती चली गई, फॉरेस्ट खराब होते चले गए, बर्बाद होते चले गए, और इस तरह प्रॉब्लम्स आई. अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है. आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी blamed, क्या हमें उनको blame करना चाहिए? Some of our environmental activists says that the promotion of a few favored species in many parts of India have been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. ठीक है, तो बस यही प्रॉब्लम आने लगा कि हम एक को ज़्यादा फोकस करने लगे, उसका कमर्शलाइजेशन होने लगा उसकी वैल्यू की वजह से, और कुछ जगहों, और दूसरी को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लगे. फॉर इंस्टेंस, teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cher pine plantation in the Himalayas have replaced the Himalaya oak and rhododendron forest. तो बस यही हुआ कि धीरे धीरे हम क्या करने लगे, एक को हम बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे. इसमें यही मेंशन हुआ ना कि हमने क्या किया कि फ्यू फेवर्ड स्पीशीज़, हमने कुछ को फेवर को हमने प्रमोट किया कुछ को, और उस केस में एनरिचमेंट प्लांटेशन हुआ. तो हम सिंगल कमर्शलाइजेशन जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, उसका एक्सटेंसिवली प्लांट करने लगे, और दूसरी स्पीशीज़ को हम क्या करने लग गए, एलिमिनेट करने लग गए. तो इसीलिए बस वही था कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी उसको हमने ध्यान दिया, जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी उसको हमने छोड़ दिया. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई. Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest. और second क्या था, development projects. Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects. अलग अलग projects बनते गए, roads, transportation के लिए forest काटे गए, river valley projects बने. Clearing of forest is still continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would mandate 40,000 hectares of forest. इतना खत्म हो गया. Mining is another important factor behind deforestation. The Buxa Tiger Reserves in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, माइनिंग की वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन होने लगे, इसकी वजह से धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या होते चले गए, ख़त्म होते चले गए. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others. और धीरे धीरे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का रूट भी बंद हो गए, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट. तो एक जगह से दूसरी जगह जानवर जा भी नहीं पाते थे. मैनी फॉरेस्टर्स एंड environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. तो और एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, ओवर ग्रेजिंग और फ्यूल वुड का कलेक्शन होना. Though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that the substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather
देन बाय फेलिंग एंटायर ट्रीज। तो बस वही हुआ कि कई लोग उससे मतलब एग्री नहीं करते हैं कि खाली फ्यूल और फॉडर की वजह से ही, या फ्यूल के लिए, या खाली फ्यूल वुड के चक्कर में या ओवर ग्रेजिंग से ही डिफॉरेस्टेशन हुआ, ऐसा नहीं है। कई लोग उससे एग्री भी नहीं करते हैं कि मतलब उन्होंने यही बोला है कि द फैक्ट रिमेन दैट द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉडर डिमांड इज मेट बाय लॉपिंग रादर देन फेलिंग एंटायर ट्रीज, कि मतलब इसके लिए उनको पूरा ट्री गिराने का कोई ज़रूरत नहीं था, वो तो वैसे भी इकट्ठा कर सकते थे। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy। ठीक है, तो बस वही हुआ, डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न भी ये था, मिनरल रिसोर्स उनका एक्सट्रैक्शन होने लगा, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होने लगा। These protected areas thus mean different things to different people and therein lies the fertile ground for conflicts। और कई ऐसे एरियाज़ भी थे, प्रोटेक्टेड एरियाज़ थे, उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में धीरे धीरे क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इसीलिए धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स, जो वाइल्ड लाइफ था, जो रिसोर्स थे, जो फॉरेस्ट रिसोर्स थे, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। सो देर आर मैनी रीजन्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 2-3 पेजेस। सो जस्ट नाउ यू हैव टू रीड ऑल दीज पेजेस, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।